नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। Sad Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings, official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਔਰ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਜਸਬੀਰ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਭਜਨਪੁਰਾ ਤੋਂ। दास जी, सब तो पहला गुरु दर्शन ब्लैसिंग्स से आप जी का स्वागत है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला जी। साध संगत जी, दास जसबीर जी का जो परिवार हैगा वो सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के टाइम ते जुड़े हुए ने। ते सब तो पहला दास जी मैं पूछना चाहना कि आप जी थोड़ा सा सानू दसो कि आप जी दे माता पिता जो ने वो किस तरह दरबार दे नाल जुड़े सी। गुरु दर्शन दास जी, महाराज जी, गुरु महाराज जी से मेरे पापा हरी जुड़े थे क्योंकि उनको नामदान की प्राप्ति करनी थी। वो बाबा बालकनाथ जी हमारे कुल देवता है जी। तो वो जिस मंदिर में जाया करते थे उस मंदिर के गुरु जी से उन्होंने मेरे पापा जी ने कहा कि मुझे मंत्र दे दो कि मैं नाम जपना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मंत्र, गुरु मंत्र कोई मिठाई थोड़ी होती है जो हर किसी को दे दी जाए। तो पापा को चोट लगी, पापा ने कहा नहीं, मैंने अब मंदिर नहीं जाना, मैंने गुरु बनाना है, तो मुझे गुरु ढूंढना है। इतने में एक आंटी जी है, रानी बाग से है, पता नहीं मुझे जगह उनका याद नहीं कौन सी जगह से थे। उन्होंने महाराज जी के बारे में बताया। तो उस टाइम महाराज जी का दरबार रजौरी गार्डन में लोहा मंडी में शिफ्ट हुआ हो। ठीक है जी। तो वहां उन्होंने जाके महाराज जी को ढूंढा, तो वहां पे से फिर नामदान की प्राप्ति की। ठीक है। तो ये केरे सन सिदास जी? 85 की बात है। 85, ठीक है। तो उस वक्त जो सतगुरु महाराज दर्शन दास जी वो लंदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। लंदन चले गए ਸੀਗੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ। मतलब आप जी ਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸਤਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਮਗਰ 87 ਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ठीक है जी। ओके, तो इस एक कारण सी मतलब आप जी दे पिता जी जो नामदान लेना चाहते सी ते इसीलिए वो दरबार दे नाल जुड़े हुए सी। ठीक है जी। ते फिर उस तो बाद दास जी? ते मैं ते बहुत छोटी सी उस टाइम ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਤਸੰਗ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਖੇਲਣ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਹੋਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਮੰਮੀ ਹੋਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਟੌਫੀ ਦਵਾਉਂਗੀ ਜਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਵਾਉਂਗੀ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਉਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਟੌਫੀਆਂ ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 87 ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਰੋਕ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਰੋਕ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਕਿਉਂ ਲਟਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਕਿਉਂ ਲਟਾਇਆ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੱਕਾਂ ਚ ਰੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਟਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਨੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਸਤਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ
ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮੈਂ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਚ। ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਡੇ ਚ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਲੋਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਮਾਵਲੰਕਰ ਹਾਲ ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਟੂਰ ਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੇਵਾ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਡੇਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਠ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਘਰ ਆਪਣਾ ਬਸ ਆ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪੇਕੇ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਭਟਕਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰੂਮ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਗਰਲਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘਰ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਭਟਕਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਘਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਭਟਕਿਆ?
आ रखिया तेन भजनपुरे, कहते आ रखिया तेन भजनपुरे, किते दूर नहीं भटकिया तेनू। ते महाराज जी दे ये बोल सुन के मैं उत्थे ही सुन्न हो गई कि महाराज जी तुसी तो सब जानी जानो। मैं ते कदी जिक्र भी नहीं कीता भी मैं मेरा विआह भजनपुरे होया ते असी अंतर्यामी अपने गुरु साहब नू इस गल तो असी कह सकते हैं कि हाँ साडा सब गुरु सब जानी जाना। सब कुछ जानदा बिल्कुल जी। हाँ जी, हाँ जी। ते होर दसो दास कोई और भी गुरु कृपा आप शेयर करना चाहते ने? हाँ जी, गुरु कृपा ते फिर ते सिलसिला की गुरु कृपा दा ही रह गया। फिर ते मेरे हस्बैंड भी इन्ने दीवाने हो गए गुरु कृपा देख-देख के ते पुछो ना उन्होंने तो एकदम महाराज जी ने करिश्मिਆਂ ਦੀ ना कहंदे जिद्दां किसे नਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ अपनी तरफ खिंचना ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ या ਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੀ जी ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇਲ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। जी ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੱਫੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ मेरे को चिढ़ाते थे भी तेरे को तो देखते भी नहीं और मुझे मुझे प्यार देते हैं। तो मैंने चिढ़ने की बजाय मैंने बोलना कि गुरु महाराज जी ना मैं तो बेटी हूँ, आप हो जवाई। मैंने कहा जवाई खुश तो बेटी अपने आप खुश। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये महाराज जी ने पहले इनको प्यार दे दे के अपनी तरफ खींचा। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था मेरी शादी को, 6 महीने हुए थे कि मुझे ऐसे-ऐसे बोल सुनने को मिल गए कि जो नहीं किसी को सुनने को मिलते होंगे। मेरा अबॉर्शन हो गया था शुरू के कुछ ठीक है महीनों में जी। ही। तो कह दिया जी इसके होगा ही नहीं अब। तो मैं फिर महाराज जी के आगे जाके रोई। मैंने कहा महाराज जी आप कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। आप लोगों के मुँह बंद करो। महाराज जी कहते आप तू खुद बच्चा है, अपनी लाइफ एन्जॉय कर। मैंने कहा नहीं महाराज जी, आप लोगों के मुँह बंद करो। तो महाराज जी की कृपा से जुलाई महीने में महाराज जी ने मुझे फल डाला है और मार्च महीने में मेरा बेटा बड़ा बेटा मुझे मिला। उसके पीछे भी स्टोरी है और बड़ा बेटा मुझे मिला जी और देखा जाए तो जुलाई महीने में मैं पीरियड से हुई थी। अगर आप उसे माइनस कर दोगे तो 8 मंथ का डिलीवरी होता है। बट महाराज जी की कृपा ही है कि फल डलने के बाद भी मेरा पूरा बिल्कुल मतलब अच्छा तंदुरुस्त बच्चा पैदा हुआ हेल्थी था। हाँ जी बिल्कुल धन दर्शन जी। ये महाराज जी का फल डाला हुआ पहला बेबी था मेरे को ताकि लोगों के जवाब मिल सके कि हाँ गुरु है। धीरे 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 महाराज जी ने अपने करिश्मे दिखाने शुरू कर दिए थे जी जिससे मेरे हस्बैंड का विश्वास बढ़ता चला गया और आज की डेट में मुझसे ज्यादा है। देखो धन दर्शन। आज की डेट में वो मुझे मुझे खुद कहते हैं कि जा जा जल्दी तू जा, मैं मैं कर लूंगा तू जा। ते आप जी दा बेटा किन्ने साल दा हो गया जी? मेरा बड़ा बेटा 20 साल का है और छोटा 12 साल का है। ठीक वो है भी महाराज जी की कृपा है और उसका होना 8 साल के बाद वो हमारे घर आ रहा था। तो मैं थोड़ा डरी हुई थी, थोड़ा शर्मा भी गई थी कि लोगों को कैसे बोलूँ कि भई 8 साल बाद आ रहा है। तो मैंने 5 मंथ में महाराज जी को बोला, मैंने कहा महाराज जी ऐसे-ऐसे बात है। तो महाराज जी ने कहा बेटा ये तो गुरु घर की रूह आ रही है तेरे घर पे, तू धन दर्शन। घबरा क्यों रही है? ये गुरु घर की रूह आ रही है। तो जब गुरु घर की रूह आ रही है मैंने सुना महाराज जी ने इतना प्यार दिया, तो उसके बाद मेरे को सारी टेंशन फ्री हो गई। फिर मैंने मतलब डरना छोड़ दिया, घबराना छोड़ दिया कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। और लास्ट जब टाइम आया तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई कि ना ये होने पे आ रहा, ना मतलब ऑपरेशन हो रहा था, ना नॉर्मल हो रहा था। हस्बैंड साइन नहीं कर रहे थे कि पहला बेबी नॉर्मल हो गया तो ऑपरेशन से कैसे हो सकता है। और छोटे वाले की धड़कनें कम सी हो गई थी, 17% धड़कन रह गई थी सिर्फ। तो मैंने स्ट्रेचर्स पे लेटे-लेटे मैंने महाराज जी से अर्ज़ोई करी, मैंने पूरी अर्ज़ोई महाराज जी की। मैंने कहा महाराज जी आपने तो कहा था गुरु घर की रूह आ रही है। मैंने कहा जी मेरा ऐसे ही लिखा है तो कोई बात नहीं, अगर आपने ये गुरु घर की रूह भेजी है तो इसे आँखें खोलने का हुक्म बख्शो। मैंने 10:30 बजे
10:45 10:30 पौने 11 बजे अर्जोई किया, ये लगा लो 11:05 पे ये हो गया। अर्जोई करने के बाद फटाफट ऑपरेशन के पेपर्स पे साइन हो गया, सिजेरियन बेबी हुआ, मगर एकदम ठीक ये हो गया। मतलब कहाँ हम दोनों की नौबत बन गई थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर और डिले किया तो फिर हमें मत कहना। जी 14% धड़कन पे जाके मेरा ऑपरेशन हुआ था, सिजेरियन हुआ था, तो ये बेबी मेरे हाथ लगा था छोटा वाला। तो इसकी तो दूसरा जब बॉर्न हुआ है तो इसकी आंखें बंद थी, ये ऊपर की पलकें ये नीचे जुड़ी हुई थी, अच्छा जी ये आईब्रोज भी नहीं थी, पलकें भी नहीं थी। तो ऐसे देखने में ऐसे लगता था जैसे सूरदास सा। तो फिर दिमाग में 3 दिन तो मेरा केस बिगड़ गया था। 3 दिन तो मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो 3 दिन बाद जब मुझे सबने बताया कि तेरे बेबी की आंखें नहीं पता लग रही है कि है कि नहीं है, हाँ जी तो मैं भी परेशान हो गई कि पता नहीं भाई सूरदासी। अब सब कह रहे हैं तो ऐसे ऊपर पलके नीचे जुड़ी पड़ी हैं, तो कहीं वैसे ही ना हो, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था अपना बेबी। ठीक है जी तो उसके बाद जब मैंने दरबार साहब फ़ोन किया वैसी हालत में, जब मेरे पास फर्स्ट डे बेबी आया तो मैंने दरबार साहब फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे जी मेरा बंटी भैया ने फ़ोन उठाया था दरबार से। तो मैंने कहा भैया ऐसे-ऐसे मेरा बेटा हुआ है और वो सिज़ेरियन है और आँखें नहीं खोल रहा है। उसको ऐसे लग रहा है जैसे आँखें है ही नहीं, ठीक है क्योंकि ना उसकी आईब्रोज़ है ना पलकें हैं। तो आईब्रोज ही नहीं थी तो पलकें तो दिखना बहुत दूर की बात हो रही थी। तो फिर बंटी भैया ने बोला, कहते कि 2 मिनट भैया भी चुप हो गए। फिर उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा कर, तू उसके माथे पे हाथ रख के सेंटर पॉइंट पे तो नानक नाम का जाप कर। जी मैंने कहा भैया मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं जाप कर सकूं। तो कहते आपके पास कौन है? मैंने कहा मेरी मदर इन लॉ है। तो मैंने कहा, कहते आपकी मम्मी? मैंने कहा मम्मी नहीं है। और महाराज जी का खेल देखो कि जैसे ही बंटी भैया से बात हुई है तभी मेरी मम्मी दरबार आ गई, वो जी हॉस्पिटल आ गई। ठीक है जी मम्मी जैसे हॉस्पिटल में आए तो कहते कि अब आप अपनी मम्मी से बोलो, उसको गोदी में लेके उसके माथे पे सेंटर में एकदम नानक नाम का जाप करो। मतलब लगातार जब टाइम मिलता है लगातार आप जाप जाप करो। मम्मी ने मेरी मदर इन लॉ घर चले गए, मम्मी मेरे पास रुके हॉस्पिटल में। मम्मी ने लगातार जाप किया। मतलब जब टाइम लगता था तब जाप करने बैठ जाते थे उसके माथे पे हाथ रख के। तो उसकी भैया दास जी उन्होंने फिर मेरे छोटे वाले ने आंखें खोली और अपनी आंखों के दर्शन दिया हमें 24 घंटे के बाद, हाँ जी सिमरन करने के 24 घंटे बाद कि मेरी आंखें हैं देखो। फिर उसने वापस बंद कर ली चाहे, मतलब थोड़े टाइम बाद उसने फिर भी 21 दिन बाद उसने आंखें खोली थी अपने बॉर्न होने के। मगर जाप के तुरंत उसने 24 घंटे में असर दिखाया अपना कि हाँ देखो मेरी आंखें हैं। शानदार ये क्या है? ये करिश्मा बिल्कुल नहीं ये है तो गुरु पता नहीं। कृपा ही तो है दास जी बिल्कुल क्योंकि वो टोटल सूरदास लग रहा था। उसकी आईब्रोज भी नहीं थी, पलकें एकदम चिपकी हुई थी। मतलब ये ऊपर की खाल नीचे गाल से चिपकी हुई थी। अभी भी आप देख सकते हैं उसको। मैं झूठ इसमें बिल्कुल भी नहीं बोल रही, 12 साल का है। उसके यहाँ पे निशान है, ठीक है जी जैसे कोई चीज जबरदस्ती खोली जाती है ना, जी वो जी चीज के यहाँ पे निशान है। वो गुरु साहब ने ही उसकी आंखें खुलवाई कि आंखें खोल बिल्कुल दुनिया ऐसे को गुरु देख को बल बल जाइए आप मुकत मोए तारे तारे। बिल्कुल ਸੋ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ हाँ जी। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ पहली बात तो ये है कि हमने ये सीखी है कि अभी तक हम सीख ही रहे हैं, जी क्योंकि सीख कभी खत्म ही नहीं हुआ। जी और दूसरा, अगर हमने यहाँ पे से कुछ सीखा है तो सेवा करनी सीखी है कि हमें हमारे सामने कोई भी परिस्थिति हो या कैसा भी बंदा हो या कुछ भी हो, हमने वहां से पीछे नहीं हटना, अपना पीठ नहीं दिखाना। हमें आगे बढ़ के उस सेवा उसको फतेह करना है। उस काम को, जो भी हमें काम या कुछ भी मिला है, हमने उसे करना है। जी लोक भलाई सबसे पहला, कि हमें लोक भलाई करनी ही करनी है। जी और अपना जितना भी, किसी से घिन नहीं करनी।
कोई भी आ जाए, अमीर हो गरीब हो, अमीर के आगे झुकना नहीं है और गरीब के आगे आंखें नहीं दिखानी, सिर बिल्कुल। झुका के उसको भी उससे देखना है जितना हम किसी और को देखते हैं। कहने का भाव दास जी के लव एंड रिस्पेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल लव एंड रिस्पेक्ट। धन्यवाद जी। हाँ जी। सो दास जी, मेरा आखिरी सवाल है कि जिस तरह गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी दिन रात करते पे ने इस मिशन ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਸੰਗਤ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਵਾ ਦਈਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੱਚਵੁੱਡ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨया ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ। ਜੀ। ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਚ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ थोड़ा टाइम रोई कि भाई ना मैं दरबार जा रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मुझे मना किया नहीं जाना। मैंने कहा पूरी बात बताओ हुआ क्या था। जी। तो कहती हैं, मतलब उसकी मुलाकात और मेरी मुलाकात ऑटो में हुई थी, वो भी दरबार जा रही थी, मैं भी दरबार जा रही थी, तो हमारे नंबर, हमने दास होने के नाते, एक ही जगह से होने के नाते हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया था। उन्होंने अपना नंबर मुझे दे दिया था, मैंने उनका नंबर ले लिया था। तो उसके बाद वो, जिस दिन वो लेडी परेशान थी तो उसका मुझे कॉल आया, कहती है कि भाई मैं ऐसे से ना, मैं दीदी मुझे आपसे मिलना है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा आ जाओ, आप परेशान हो तो मेरे घर आ जाओ। तो उन्होंने बताया कि मेरे घर आके रोए वो थोड़ा सा, तो कहते हैं कि भाई मैं ना दरबार गई थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वो बोला, मतलब बोला कि तू नहीं जाएगी। मैंने कहा पूरी बात बताओ हुआ क्या था। उन्होंने कहा कि मैं बोल के गई थी घर से कि मैं पार्लर जा रही हूँ और मैं पहुंच गई मैं दरबार, और हस्बैंड ने मुझे देखा गोलचक, मतलब यहाँ पे रास्ते में जब हम लोनी जाते हैं तो गोल चक्कर एक आता है जहाँ से हमें ऑटो बदलने होता है, लोनी दरबार जाने के लिए ऑटो लेना होता है। जी। तो वहां पे वो दूसरा ऑटो भजनपुरे का ले रही होंगी, तो उनके हस्बैंड पुलिस में थे, तो वहीं पे थे, उन्होंने देख लिया तो उनके यहाँ पे थोड़ी सी तू मैं हो गई। तो मैंने कहा देखो पहली गलती आपकी ये है कि आपने उनसे झूठ बोला। आप उनको बोलते कि मेरे को दरबार जाना है, या तो आप चलो या मुझे मतलब या तो जाने दो या लेके चलो। जी। तो फिर कहते कि नहीं, वो नहीं मुझे मानेंगे। मैंने कहा ऐसा है, आप गुरु महाराज जी ने कहा है कि आप 5 बार नानक नाम करके आप जो बोलोगे ना वो सच होगा, तो जी। आप करके देखो। मैंने कहा जरूर होगा। तो आप यकीन कीजिए, उस लेडी ने, मैंने उसको जैसे समझाया, मैंने कहा आपने गुस्सा नहीं होना, आपने गलती की है, आप उनसे झूठ बोल के निकले थे इसलिए आपने गलती की, तो वो उनका नाराज होना जायज है। तो अब आपको दरबार, जिस दिन भी आपको दरबार जाना है, आप एक दिन पहले या उसी दिन महाराज जी को याद करो, पंचवन नानक नाम करो और उनसे पूछो कि या तो आप साथ चलो या मुझे जाने दो। दास जी आप यकीन कीजिए कि उस लेडी ने वैसे ही किया, महाराज जी को याद करके पंचवन नानक नाम करके, मतलब अपने हस्बैंड से पूछा तो कहते जा, मैंने कब रोका, कहते सच बता के जा, मैंने नहीं रोका। तो मतलब वो लेडी मुझे थैंक कर रही है, कह रही है कि आप में आपसे बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं गुरु महाराज जी से बात करूं। मैंने कहा इतनी बड़ी उपाधि मत दो, बस हम तो उनके पैरों की जूती भी नहीं है, बस उनका बताया हुआ एक बोल था जो मैंने आपको बताया, जी। उनका बताया हुआ एक इशारा था जो मैंने आपको दिया, जो वो हमेशा कहते हैं और मैं भी यही इस्तेमाल करती हूँ। आप भी करके देखो, 5 बार नानक नाम करने से ही बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है बिल्कुल। और बड़े से बड़ा काम हो जाता है। बिल्कुल जी, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦਾ 5 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੱਗੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। हाँ जी। ਬਿਲकुल। ਤੇ हाँ जी। ਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇसी तरह आप जी और आप जी के परिवार ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾ ਕਰਨ। बस मैं आपके जरिए महाराज जी से यही कहना चाहूंगी, महाराज जी आपने मुझे दुनिया की बहुत चीजें दी, सब चीजें दी, धरती से आकाश तक की जितनी भी जरूरतें मेरी सभी पूरी किया है, बस मुझे नाम से और अच्छे से जोड़ दो ताकि मैं आपसे मिल जाऊं। बिल्कुल, धन दर्शन जी।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ